Deep dive into the world of astrology, numerology and life coaching with a fresh perspective and a real discussion about what are real solutions and what are myths. Don't miss. That's every Tuesday 4 p.m. to 5 p.m. only on Radio Zindagi 1550 AM. Jiye ja. Jiye ja. Jiye ja. The views, opinions, and statements expressed in the following program reflect views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of Fremont Broadcasting LLC, its management, or its sponsors. आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जिए जा। Hello and welcome. You are listening to Radio Zindagi 1550 AM and you've tuned into the show जिसका नाम है The Pragmatic Astrology Show with Dr. Saket Bhatia. आप हमें रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं, बट फेसबुक का जो पेज है रेडियो जिंदगी का, वहां पर आप हमें देख भी सकते हैं as we delve into this world of astrology. हमारे साथ हैं Dr. Saket Bhatia, who is a PhD in Vedic astrology. He's also a board member of International Association of Vedic Astrology and Numerology. अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहें उनके बारे में, then you can go to saketbhatia.com. Or if you would like to book your appointment, because we've been on air for the last 2 months almost and we keep getting calls, पर अगर आपको लगता है you are ready to make that appointment, then the number to call would be 408-639-5300. That's 408-639-5300. With that, let me welcome Dr. Saket Bhatia to the show. Hello and welcome. कैसे हैं आप? I'm fine. How are you? I'm doing well as well. तो मैं अपने listeners को याद दिला दूं, ट्यूसडे के दिन 4 से 5 बजे तक हमारी ये कॉन्वर्सेशन शुरू होती है जहां पर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और ये है द प्रैग्मेटिक एस्ट्रोलॉजी शो विथ डॉक्टर साकेत भाटिया. तो साकेत, कैसा फीडबैक आ रहा है? हम हर बार बात करते हैं फीडबैक के बारे में बिकॉज आई थिंक दैट्स वन ऑफ द क्रूशियल थिंग्स कि हम अपना शो कैसे बेटर बनाएं. तो व्हाट इफ यू बीन हियरिंग, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, अगर आप उसके बारे में बताएं तो. देखिए, हम we don't really share the names, लेकिन काफ़ी ज़्यादा calls आते हैं जी. At an average we're getting, I would say, about half a dozen calls and almost 6 to 7 people calling us and saying कि हमें appointment schedule करनी है जी. Now हमारे पास तो इतना वैसे time है नहीं. I don't do astrology, like Full time. As a business. This Right. is a service we're trying to run. So many people are calling, many people are coming for appointments, and it's all over the map. Just this weekend I told you we were out of town. And then we had some interesting meetings from some celebrities over the weekend, some models and some actresses and some top-ranking businessmen. So overall, it's been a very informative session for us. हमने लोगों को काफ़ी help किया है, and we want to continue this. That's why we have this show. कि people need to call us, not just on the show. If you're calling on the show, please feel free to schedule an appointment. Come in, meet. It's very important to know कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, जी. आप कहाँ हो और कहाँ जा सकते हो. दैट्स राइट. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपने अपने अभी नए मॉडल्स एक्ट्रेसेस के बारे में बोला, नॉट ऑल ऑफ देम आर इंडियन, सो दैट वाज अ लिटिल इंटरेस्टिंग टू मी कि भारतीय लोग तो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आउटसाइड इंडिया पीपल आर गेटिंग क्यूरियस एंड ट्राइंग टू गेट हेल्प. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Actually, this is not the first time. ये पहली बार नहीं है कि we are getting people from Poland or Russia or Brazil or Argentina. पहले भी आ चुके हैं. Okay. But for some reason it seems this show is being watched online on YouTube. हमारा जो चैनल बनाया है वहाँ लोग देख रहे हैं. People are calling us and people are coming in. जी. I just had 2 people fly in from Florida. They were in the city, but they actually flew and they took an appointment and they've gone back, and it seems good. And I know they're watching the show. I know they're at least listening to it. Okay, that's great to hear. और अगर आप भी होना चाहते हैं उन लोगों में से जो कि मीट करें डॉक्टर साकेत भाटिया से, if you would like an appointment, then the number to call is 408-639-5300. That's 408-639-5300. And email, of course, is info@saketbhatia.com if you'd like to mail in your questions. तो साकेत, हमें भी काफ़ी questions आते हैं, और एक question जो कि listeners का भी है और मेरा भी है, that when you look at a chart, right, आपको कोई बताते हैं details और आप charts देखते हैं, so it's very common for astrologers, the good ones, to share कि कहाँ आपका क्या बैठा हुआ है, कौन से house में क्या है, but layman लोगों को समझ में नहीं आता वो कि
what happens when a particular planet is in this ग्रह है और वो, तो ये शेयर करना जरूरी क्यों है? It's very important. It's the same thing. आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको अपनी चार्ट दिखा के बोलता है, look, this is your cholesterol level, your hemoglobin, your iron content. जी. आपको समझ कुछ तो आता है ना. He tries to explain, looking at your chart, he says, this is out of range, या this is in range. Same way astrology में क्या है, चार्ट है. चार्ट पे 12 घर है, 9 planets हैं. तो how hard is it for us to show you? हम आपको दिखाते हैं and you have to trust us. देखिए आपका जो मार्स है ये 8th हाउस में बैठा है. It is aspecting your 3rd house. इसका मतलब ये नहीं जैसे some astrologer से कि आप अपने छोटे भाई बहन पे भारी हो गए. No, ऐसा कोई रूल नहीं है. But we try to explain कि मार्स क्या कर सकता है, कहाँ देखता है and how it will benefit you or impact you in the future. उसकी दशा जब आएगी तो क्या होगा. हम आपको planets की strength दिखाते हैं. That's very important. If a planet is weak, वो result दे नहीं सकता. And many people come and say, I'm almost 40 years old. I still haven't reached that level of fame. तो उनको कहते हैं देखिए your 40 आपका राहु देखिए जो फेम का प्लैनेट है. जुपिटर देखिए लक विजडम का. राहु hasn't matured yet. तो उसके बारे में हम बात करते हैं. It's very important to show. जो अंदर आता है show them. क्योंकि वो अपनी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं. Right. There's nothing wrong in explaining to them in an hour or 2 hours or how much ever time it takes. कि देखिए ये आपकी चार्ट में वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ है. देखिए you have to build on your strength. That way you overcome your weakness. Very nicely put. तो जैसे जब हम आपकी एनालॉजी के हिसाब से जाते हैं, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे अरे हीमोग्लोबिन का हेल्दी रेंज ये है और आप यहाँ हैं, तो इज देयर अ आइडियल चार्ट समवेयर जिससे आप लोग सीखते हैं एंड दैट्स वेयर वन वुड नीड टू बी बट बाकी लोगों का ऑफ होता है. इज दैट अ कॉन्सेप्ट? Yes, so every chart is an ideal chart. कोई चार्ट ऑफ नहीं है. कोई भी चार्ट ऑफ नहीं है. ये आपका माइंड है और इंटरप्रिटेशन है कि ये चार्ट ऑफ है. अभी आप अपने बारे में देखिए, you're happy, you're in the studio. There must be some aspects of your life जो are not absolutely perfect. Correct. But this is what makes a chart good. That's right. देखिए आपकी फैमिली है, आप खुश हो, पेरेंट्स है, हेल्दी हो आप, it's a perfect chart. वेरी नाइसली सेड. तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल कीजिए. स्टूडियो लाइन पर जुड़ने का और सवाल पूछने का नंबर इज 510-770-1550. नंबर अगेन इज 510-770-1550. We will be taking calls and answering questions and help as many people as possible. तो आपने कहा साकेत जी की इंटरप्रिटेशन पर है, तो इंटरप्रेट करने वाले होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स. तो how does and there are some good ones and there are some better ones, so what is the difference between them and how does one identify that? So I think education makes a good astrologer a better one. Acha. Experience makes a better astrologer an exceptional astrologer, and an astrologer who can articulate, जो बता सकते हो आपको कि ये आपकी लाइफ में है और ये आगे होगा explicitly, कि आपको समझ आ जाए. And you leave the astrologer feeling a sense of yes, I have accomplished something. That is the best astrologer you need to go to. देखिए एस्ट्रोलॉजी में कोई अच्छा बुरा एस्ट्रोलॉजर होता नहीं. हाँ, क्लेम्स तो सबके हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम दिस, नहीं. बट गो टू एन एस्ट्रोलॉजी जिसके साथ आप जेल हो सकते हो. somebody who can explain things better to you, because at the end of the day डरना नहीं है. ओ आपका हम कुछ नहीं कर सकते till you do this. That is wrong. ना. You can do stuff और आपकी लाइफ improve हो सकती है. Right? And you need to go to an astrologer जो आपको ये समझा सके, who can do that with you. So this is what makes an astrologer really good. हाँ, अगर आप पूछ रहे हो तो I'll try explaining. Occult astrology is 8th house. Okay. अगर आपका ascendant 8th house में बैठ जाए, that will make you a good astrologer. Number one. अगर आपका ये जो ascendant lord है ये retrograde हो जाए 8th house में, it will make you a better astrologer. If he is aspecting the lord of the house, 8th house, it will make you an exceptional astrologer. अगर 5th house, which is the house of giving advice to people, वो अगर conjunct moon के साथ 6th house में घुस जाए या aspect करे, then you can say this is a phenomenal because he can now explain things to people. समझे? So these are critical things you have to do. तो पहले एस्ट्रोलॉजर का चार्ट निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि किसका कहाँ पर है. अभी for example, हमारी चार्ट में yes, 1st house lord is retrograde in 8th house. And जो 5th house lord है वो अपने ही 6th house के भावा में चला गया है. When you look at the भावा चलित chart, so it is easy for me to explain things to people, right? To make them understand chart में strength क्या है, weakness क्या है, and yes, my
जो 8th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठा है एस्पेक्टिंग द 8th, सो इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. गॉट इट. तो आपका वो जो पॉपुलैरिटी वाला ग्रह कहाँ बैठा है, मुझे लगता है बहुत ही आगे होगा, क्योंकि यू आर सो वेल स्पोकन एंड हर कॉल्स जो हमें आती है एंड जो कमेंट्स मिलते हैं, एवरीवन लाइक्स योर स्टाइल बिकॉज टू योर पॉइंट हर प्रोफेशन में मतलब नॉलेज इज वन, एक्सपीरियंस इज वन एंड देन हाउ यू कम अक्रॉस इज अनदर. राइट. तो द वन क्वेश्चन जो हमें ईमेल आया, इंटरेस्टिंग ईमेल आया था इस हफ्ते, वाज इज एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, नंबर 1. एंड नंबर 2, ये जो आप पढ़ते हो चार्ट्स, आप क्या क्या देखते हो जो आप लोगों को 2 मिनट में आंसर दे रहे हो, आप एग्जैक्टली देख क्या रहे हो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जी हाँ, बोलिए. तो माय थिंग इज एस्ट्रोलॉजी लाइक एवरी अदर फील्ड इज इजी एंड डिफिकल्ट बोथ. इफ यू पुट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लाइक मी एंड यू टेल हिम भाई लॉ पढ़ लो, आई विल से ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे होता नहीं, इंटरेस्ट नहीं है. सो सेम वे इन एस्ट्रोलॉजी ना, वी हैव टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स. काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आई लुक एट द डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स, आई लुक एट एस्पेक्ट्स. भाई वो तो सॉफ्टवेयर करता है आज की डेट में. एस्ट्रोलॉजी इज इंटरप्रिटेशन, इट इज एनालिसिस एंड इट इज analyzing and telling the individual how they will lead a better life. That is all it is. तो ये सॉफ्टवेयर की बात छोड़ दो, जो डिग्रीज है, ये एस्पेक्ट्स है, ये सॉफ्टवेयर दिखा देता है. पर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है? And that comes with a lot of experience. So to start, right? In this show I'm going to try, अगर टाइम मिले, questions कम हो, I will try to answer कि हम क्या फीचर्स देखते हैं एक बर्थ चार्ट में when somebody comes to us, या जब हमें कॉल आता है, इन 2 मिनट में हम एग्जैक्टली क्या फास्ट देखते हैं, so that we can answer your questions. जी, मैं अपने लिसनर्स को एट दिस पॉइंट याद दिला दूं कि क्वेश्चंस ले रहे हैं हम ऑन एयर. तो अगर आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ना चाहें, 5107701550 इज द नंबर. 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर. पर लाइक साकित वाज सेइंग कि अगर आपको ये 2 मिनट नहीं, अगर ज्यादा टाइम चाहिए, सो ही कैन डू अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर बर्थ चार्ट, देन यू मस्ट सेट अप एन अपॉइंटमेंट टू हिज ऑफिस. दैट्स 408-639-5300. वो है साकेत भाटिया जी के ऑफिस का फोन नंबर. नंबर अगेन इज 408-639-5300 एंड ईमेल एड्रेस इज info@saketbhatia.com. तो साकेत जी, हम बात कर रहे थे कि द बर्थ चार्ट, वंस यू गेट इट, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो आप देखते हैं एज अ चेकलिस्ट इफ वन मस्ट. So if you give a birth chart, पहले तो हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, there are many different softwares जो चार्ट बनाते हैं, right? The first thing you must see is ascendant. और ascendant का जो मतलब फर्स्ट क्या हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस है वो देखते हैं. अभी फर्स्ट हाउस जो होता है दैट इज ईस्ट राइजिंग. जब आप पैदा हुए थे, ईस्ट पे क्या था, दैट इज योर ascendant. ओके, राइट. जी. जो 10th हाउस है, दैट हैपेंस टू बी अप नॉर्थ एंड द 7th हाउस इज वेस्ट. ये इंपॉर्टेंट है, बट हम देखेंगे नॉर्थ, जो ईस्ट राइजिंग है उस घर को देखते हैं. दैट कुड बी one of either Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, or Pisces, in that order. To be successful in life, to be healthy in life, to be fortunate in life, to be famous in life, to be everything in life, you must have a very strong first house, a first house lord, and aspects to the first house. ये 3 चीजें होनी चाहिए. Then you will be very healthy, successful, famous, rich, spiritual, everything. Okay, we have a caller and let's find out कि उनके charts में क्या है and then we'll resume our conversation. Hello, you are live on air on Radio Zindagi. Thanks. My name is Paul. Hello, and, Paul. My date of Hi, how are you, sir? Good, how are you? My date of Good, thanks. My date of birth is July 25th, 1961. At 10 to 12 in the morning. 10-12 in the morning? 10 to 12, 11:50 a.m. in the morning. 10 minutes to 12, so Achha. 11:50. Okay. Yeah, 11:50 a.m. in the morning, Amritsar. Okay. I just have a question about my job, business, whatever. I'm out of it. You're out of your job? Job, yeah. Business, yeah. Okay. तो क्या क्वेश्चन है आपका? Yeah, I'm out of my job and business, so what's my business career? देखिए, आपकी जो चार्ट बनती है, you're a Mercury ascendant, which means जो ascendant first house हम पढ़ते हैं, he is a Virgo. और आपका जो ascendant lord है वो
10th हाउस में बैठा है, तो डिड यू हैव योर ओन बिजनेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने किसी के लिए काम किया है? I never worked for anyone. I had my own business, but it's not working right now for a long time. Okay. What kind of business did you have, if you don't mind? I have multiple kinds of business, but nothing worked out. देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक रूल होता है, when moon is 12 houses away from Jupiter, it causes some problems. ये आपके केस में है. Number 2, आपका Jupiter and Saturn both are retrograde in the 5th house. Planet like Jupiter, when it goes retrograde, I was trying to tell a friend of mine, it loses a lot of its luck. And जो Saturn है, that will cause delays. आपका Saturn अपने ही घर में 5th house में बैठा है. So it's very strong. Your primary question is what? You want to start a business? You want to get a job? क्या पूछना चाहते हो आप? No. I'm talking about my business. I have multiple lines of business, but I was not successful in any of them. Okay. तो फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में व्हाट इज देयर फॉर यू? अभी आपकी दशा चल रही है राहु की. राहु इज बेसिकली सिटिंग इन योर 12th हाउस, व्हिच इज हाउस ऑफ गिविंग थिंग्स अवे. इट्स सिटिंग विद मार्स. मार्स आपका जो है इज योर एक्शन. द चार्ट इज सेइंग यू हैड एन अपॉर्चुनिटी बट यू मिस्ड इट. आपके थोड़े मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं चार्ट में. सन इन द 11th हाउस इज वेरी गुड. यू विल बी अ सेल्फ मेड मैन. इफ आई वर यू, आई वुड वेट till at least 25th of July 2024 जब राहु सन की दशा आती है, for some improvement in your business. At this point of time, next year you must wait till at least 25th July 2024 for some improvement. I'm not saying things will improve drastically. अगर drastic improvement चाहिए, you've got to wait till 2028 Jan. उससे पहले it is really going to be hard. But if you like, you can always call, email, we can have a further discussion and explain कि why your Jupiter, which is the planet of your house and luck, why it is losing its luck. ये discuss कर सकते हैं हम. Okay. Thank you so much for joining us. And the number to call Saket's office is 408-639-5300. That's 408-639-5300. Email address, if you'd like to contact via email, is info@saketbhatia.com. तो Saket, you were talking about कि हर एक ग्रह का और जो इसका क्या होता है, what is that you look at, and we were covering ascendants. So हमने कह दिया कि the ascendant is the most important thing, right? अभी second is ये जो कॉलर जिनका फोन आया था, his ascendant was sitting in his 10th house, Mercury. अपने ही घर में बैठा था. तो एस्ट्रोलॉजी का रूल है, when a planet sits in its own house, it becomes very strong. Right. And जिस घर में ascendant lord बैठता है, that house is guaranteed assured in life. अभी जिस इंडिविजुअल का फोन आया, his Mercury is ascendant lord sitting in 10th. I can assure this man कि बिजनेस तो खुद का ही करेगा, काम किसी के लिए नहीं कर सकता, एंड बिजनेस में भी अच्छा करेगा. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? आई विल एक्सप्लेन कि जो प्लैनेट्स होते हैं, दे आर लाइक अस. ये सो जाते हैं, ये अपनी दशा में उठते हैं, रिजल्ट देते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दशा में उठते हैं, वो भी बेचारे थक जाते हैं, राइट? सो जो असेंडेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और असेंडेंट को हम लगन कहते हैं, और असेंडेंट लॉर्ड को लग्नेश कहते हैं. तो लाइक आई सेड, जहां लग्नेश बैठ गया वो अच्छा रहेगा लाइफ का. अगर आपका असेंडेंट 5th हाउस में बैठ गया, यू आर गोइंग टू गिव गुड एडवाइस टू पीपल. किड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. अगर 7th हाउस में बैठ गया, मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप, इट विल मेक श्योर ये संभल जाएगा आपका लाइफ में. यू वोंट हैव प्रॉब्लम्स देयर. अगर 8th हाउस में बैठ गया, यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, राइट? तो दीज आर सम क्रिटिकल रूल्स. ये रूल 1 है एस्ट्रोलॉजी का. जी. तो ये जो हाउसेस होते हैं, इनके अपने अपने रोल्स होते हैं, मतलब ये इस चीज में हेल्प करेंगे, और वेयर योर स्टार प्लैनेट्स एक्चुअली सिट जस्ट मेक्स दैट कॉम्बिनेशन. ना, अ प्लैनेट ओन्स हाउसेस. ओके. Besides sun and moon, a planet owns 2 houses. The planet has its own inherent properties, like Mercury is business, Jupiter is wisdom. अब वो किस घर के ओनर है और कहाँ बैठे हैं, तो वो प्लैनेट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जिस घर के ओनरशिप है वो लेके जिस घर में बैठा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी डाल देता है. ओह, so complicated. So to come back to it again, right? I'm explaining कि जो ascendant है और लग्नेश है वो क्या है. नाउ हम नेक्स्ट चीज पे जाएंगे. जो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कहते हैं, आपके घर का मालिक, ये आपने सुना होगा जी. सो मून ओन्स द साइन ऑफ कैंसर, सन ओन्स द साइन ऑफ लियो, मर्क्यूरी ओन्स द साइन ऑफ वर्गो एंड जेमिनाई, जुपिटर ओन्स द साइन ऑफ पाइसेस एंड सैजिटेरियस, मार्स ओन्स एरीज एंड स्कॉर्पियो.
ये इजी से रूल्स है. वीनस ओन्स लिब्रा एंड टॉरस, ये इनके घर हैं. अगर आपका जुपिटर लिब्रा में बैठ गया तो थिंक एज वीनस एज द लैंडलॉर्ड. वीनस लैंडलॉर्ड है इसका, एंड जुपिटर इज टेम्पररीली स्टेइंग देयर इन योर चार्ट. ओके. तो जुपिटर हैज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वीनस. वीनस के रूल्स क्या हैं वो वीनस बताएगा इनको. ओके. एंड जुपिटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे विल बी लिमिटेड बाय द हाउस एंड द लैंडलॉर्ड. आपका लैंडलॉर्ड कहता है यू कैन नॉट डू दिस, यू हैव टू डू, सेम वे वीनस विल टेल जुपिटर आप मेरे घर में बैठे हो, आपको ये रूल्स फॉलो करने, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. गॉट इट. सो दो ये घर का मालिक होता है. हु ओन्स द हाउस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी, मैं अपने लिसनर्स को याद दिला दूं, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस ऑन एयर, सो इफ यू वुड लाइक टू गेट योर बर्थ चार्ट लुक्ड एट, आप हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550. नंबर अगेन इज 5107701550. तो हमने बात की कि क्या कॉम्बिनेशन और कब कहाँ कौन बैठे, तो यू नो व्हाट रूल्स आर एंड so what are the other rules that you look at? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स जो हम देखते हैं जब कोई कॉल करता है. जी. तो हम देखते हैं असेंडेंट, हम असेंडेंट लॉर्ड देखते हैं, फिर हम देखते हैं रूलर है घर का मालिक. अब हम देखेंगे डिग्रीज. एनी प्लैनेट जो असेंडेंट के 1 डिग्री लेफ्ट राइट पे बैठा हो, इट इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांग. देन देयर आर सर्टेन रूल्स कि अगर प्लैनेट जो है वो अगर ऑड हाउस में बैठा है, ऑड नॉट इवन नंबर, ऑड हाउस में बैठा है 0 to 6 डिग्री में, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्फेंट. उसका रिजल्ट सिर्फ 12.5% दे सकता है. If he is sitting between 6 degrees and 12 degrees, he'll give 25% result. जी. If he is sitting between 12 and 18 degrees, 100% result देगा. If he is sitting between 18 and 24, तो उसका result थोड़ा कम. However, in an odd sign, if a planet is between 24 to 30, he is considered dead. He cannot give results. This is very, very, very important. People forget this rule. जी. Saket, I feel like a whiteboard session चाहिए मुझे जिससे कि हम सब देख सके. But since we don't have that, we do have a caller और वो हमें they have a question for us. You are live on air on Radio Zindagi. नमस्कार जी, मैं नीलम बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है June 24, 1964. No, I'm sorry, 1963. पाकिस्तान, कराची, 6:45 PM. यार हमें तो कोई हेलो हाय भी नहीं बोलता. नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार. How are you? सकेत भाई साहब, how are you? गुड. ये कराची है तो हमारा नेबरिंग कंट्री का स्टेट, लेकिन सिटी हमें पता नहीं कौन से स्टेट में पड़ता है ये. कराची, मेन कराची में ही पैदा हुई थी. अच्छा, तो एंड योर टाइम, आप जून 24, 1963, टाइम क्या था? 6:45 PM. 1845. Yeah. अच्छा, और आपका क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली मेरी लाइफ हमेशा से बहुत अच्छी रही है. पिछले 5 सालों में सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, तो मैं एक आशा की किरण ढूंढ रही हूँ. अच्छा, आप एक सेकंड, आई एम सॉरी, आपने कहा सब कुछ खत्म हो गया. क्या खत्म हुआ है, जरा मुझे समझाइए. मेरी शादी, मेरे जितना भी एसेट था, सब कुछ. पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल. ये 5 साल पहले हुआ कि 5 साल से होते जा रहा है? पिछले 5 साल से शुरू हुआ और एक्चुअली 1.5 साल पहले मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वो पास अवे भी हो गए. क्या हो गया? आई एम सॉरी. ही पास अवे. अच्छा, ओके. तो अनफॉर्चुनेटली नथिंग केम टू मी और माय किड्स, जिसके लिए हम दोनों ने बहुत लगन से काम किया था, वो किसी और के नाम पर छोड़ गए. ओके. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी और अपने को दोबारा से एस्टैब्लिश कर पाऊंगी? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, दैट हैज नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज द आंसर इज यस, यू कैन डू बेटर इन लाइफ. अब आज रात को सो के you're assuming you're going to get up tomorrow, ना? It's called hope. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि यू गेट दिस आउट ऑफ योर हेड. अच्छी चीजें होंगी और वी कैन मेक श्योर सब अच्छी चीजें हों. नाउ लेट्स फोकस ऑन योर चार्ट. ओके, आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स एंड वील टेक सम टाइम. आपका जो टाइम है, यू वर बोर्न ऑन अ मंडे. हाँ जी. तो मंडे का जो मेन प्लैनेट है दैट इज मून. आपका जो गली का मंडी, विच आई हैव रिपीटेड इन दिस शो मेनी टाइम्स, मून्स ऑफ सैटर्न आर सिटिंग इन द हाउस ऑफ गेन्स. ओके, तो दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द हाउस ऑफ वीनस. तो जब वीनस की दशा आएगी
ऊपर चढ़ाव होगा उसका, नंबर 1. नंबर 2, इसके ऊपर एस्पेक्ट्स किसके हैं? इसके ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ता है रेट्रोग्रेड सैटर्न का. सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि कुछ गड़बड़ हो गई, बट इट अपीयर्स टू मी एंड आई एम टेकिंग a shot. I don't know your time, but 23rd March 2018 में lots of things started because Moon Venus की दशा थी. Moon is sitting in the 8th house, the house of destruction, and Venus की दशा में जो गली का मंडी थी, they will cause ups and downs. उसके बाद आपके आ गया Moon Sun, and the Moon Sun are 12 houses away. Although they are friends, Sun राहु के साथ बैठा है. That will cause more destruction in 2029 November 11th. उसके बाद दशा आती है मार्स की. मार्स 12th हाउस लॉर्ड है और 5th हाउस. 5th हाउस लॉर्ड जो होता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. 12th हाउस विल ऑलवेज एक्ट एज द 5th हाउस, एंड वो बैठा है 9th. तो आप जो कह रहे हो, आपकी दशा तो अच्छी स्टार्ट हुई है, और आपकी अच्छी दशा जो स्टार्ट हुई है 2021 जून 11 से लेके अब तक वाज एक्चुअली टिल 2022 अक्टूबर वाज अ डिसेंट टाइम फॉर यू. अब जो टाइम है मार्स और सैटर्न का, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता. दिस इज टफ. प्लीज गो थ्रू दिस टाइम. इसके बाद मार्स मर्क्यूरी जो आते हैं, दे आर एनिमीज. हाउएवर मार्स एंड मर्क्यूरी आई वुड से वुड बी अ बेटर टाइम फॉर यू. नवंबर 22 2023 से आपका टाइम थोड़ा बेटर स्टार्ट होगा. ओके. एंड उसके बाद जो मार्स केतु है, दैट विल बी इवन बेटर बिकॉज केतु ऑलवेज एक्ट्स लाइक मार्स. सो बिटवीन नाउ एंड 2025 you should have a better time, but be warned, 2025 अप्रैल 16th में फिर वीनस की दशा आती है गली का मंडी, बिकॉज आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है ही इज नॉट दैट वेल प्लेस्ड, नीदर इज द लॉर्ड ऑफ डे प्लेस्ड. तो पैसे आपको वो बात नहीं है, पैसे आ जाएंगे आपके, बट इट विल टेक टाइम. यू विल हैव टू वेट. ओके. एंड डोंट गिव अप. लाइफ इज सो लॉन्ग. इतनी बड़ी है लाइफ. कल क्या हो, कल लॉटरी लग गई आपकी तो देन यू विल बी सो हैप्पी. नहीं, एक्चुअली मैं डेली काम पर जा रही हूँ एंड आई नो आई अकम्प्लिश अ लॉट, बट मेरा कई बारी साहस टूटता है तो मैं एक रे और होप ढूंढती हूँ, फिर खड़ी हो जाती हूँ. तो गुड ना. ग्रेट एटीट्यूड नीलम, थैंक यू सो मच. गुड लक टू यू. और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहें एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद डॉक्टर साकेत भाटिया, 408-639-5300 इज द नंबर. हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर. नमस्कार जी. नमस्कार. कैसे हैं आप? आई एम फाइन. आप कौन है भाई? आपको इंट्रोडक्शन देते हैं जी. मेरा सवाल है अपनी वाइफ के लिए. अच्छा. उनका नाम है नीलम. ओके. डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 25, 1965 एंड टाइम इज 6:02 PM अमृतसर. 6:02 PM अमृतसर. जी. और आपका सवाल क्या है? इनकी सेहत के बारे में जी. तो क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है सेहत का आपके पास? सेहत इनकी डे बाय डे डाउन हो रही है. ओके. ट्रीटमेंट चल रहा है पर वो दे आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग. तो किस चीज का ट्रीटमेंट है? यू डोंट नो? उनके मुताबिक लिवर सिरोसिस है. सी, मैं इस शो पे इस शो पे हमें बात करनी थी प्लैनेट्स की, और वन ऑफ द प्लैनेट्स इज जुपिटर, जो प्लैनेट है लिवर का, फैट का. वो जो प्लैनेट है आपकी वाइफ का, इट इज सिटिंग इन द 6th हाउस. उस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट गिरता है सैटर्न का, रेट्रोग्रेड सैटर्न. और सैटर्न इज एक्चुअली आपकी जो वाइफ है उनकी चार्ट में सैटर्न अपने घर में बैठा है, वेरी स्ट्रांग. असेंडेंट 19 डिग्रीज है, दिस इज 21 डिग्रीज. जब जब सैटर्न की दशा आएगी प्रॉब्लम देगा. दिस प्रॉब्लम शुड हैव स्टार्टेड समवेयर क्लोज टू October 14, 2022, एटलीस्ट एट अ लार्जर स्केल, and it is still an ongoing issue. So I would say at this point of time the only aspect, इसका जो लॉर्ड है मर्क्यूरी वो भी रेट्रोग्रेड है. मार्स मंडी के साथ बैठा है. तो what is the question? आपको पूछना है कि ये ठीक होएगी कि नहीं ठीक होएगी बीमारी, कि क्या है? जी यही ठीक होएगी. I'll be very honest, it's very hard. मुश्किल है.
it is very hard to get, it is not easy to get this fixed because Jupiter जहाँ बैठा है और जो इसका कारक भी बैठा है, they are not sitting in the right houses. I'm sorry, but you need to get expert medical opinion. This is not a case which is going to improve over time. I wish I can help. Okay, thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. पर अगर आप इलाबरेट बात करना चाहते हैं तो आप ऑफिस फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. एंड द नंबर टू कॉल डॉक्टर साकेत भाटिया's ऑफिस इज़ 408-639-5300. द नंबर अगेन इज़ 408-639-5300. या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं info@saketbhatia.com. एंड ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू www.saketbhatia.com. स्टूडियो नंबर वन मोर टाइम फॉर पीपल हु वांट टू कनेक्ट ऑन एयर इज 5107701550. दैट्स 510-770-1550. हम बात कर रहे थे कि कैसे जो लग्नेश होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और आप बोल रहे थे थिंग्स दैट यू लुक एट व्हेन यू लुक एट द बर्थ चार्ट, राइट? तो एक पहला हमने कवर किया. व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी लुक एट? अभी हमने डिग्रीज कवर की थी. नाउ वी आर गोइंग टू कवर समथिंग कॉल्ड डिग्निटी ऑफ अ प्लैनेट. डिग्निटी का मतलब होता है प्लैनेट कितना खुश है या कितना सैड है. जी. कभी कभी क्या होता है, अभी जुपिटर इज अ वेरी गुड प्लैनेट, वीनस बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन अभी इस इंडिविजुअल जिनका फोन आया था, जुपिटर इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद लिवर. इट डिपेंड्स ऑन डिग्निटी. अगर जुपिटर गलत घर में बैठ गया, या जुपिटर अपने एनिमी के घर में बैठ गया हो, या जुपिटर पे गलत एस्पेक्ट्स हो, तो उसकी डिग्निटी खराब होती है. इन दैट केस डिग्निटी, जो जुपिटर की डिग्निटी है, दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स जुपिटर गिव्स. समझे? ऑन द अदर हैंड, अगर प्लैनेट अपने ही घर में बैठा हो, लाइक यू, आप अगर अपने ही घर में चले जाओ, रिलैक्स्ड हो, कंफर्टेबल हो, यू कैन डू बेटर. लेकिन अगर आपको हमने उठा के आपके एनिमी के घर में भेज, अज्यूम यू हैव एन एनिमी जो आपको नहीं पसंद, उसके घर में बैठ दिया, बोला चलो नाउ डू समथिंग, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म. सेम विद प्लैनेट्स, दे हैव टू बी इन गुड डिग्निटी. वो रिजल्ट्स दे सकते हैं. ऑलराइट, वी विल पॉज दैट डिग्निटी थॉट फॉर आवर नेक्स्ट कॉलर. यू आर लाइव ऑन एयर. Hi, I'm Kamna Tripathi, and my birth date is August 18, 1981. Yeah. 803. Can you slow down a little, Kamna? Just a little. Can you repeat your date of birth, please? August 18, 1981. Time 8:20, Mumbai. Morning or night? PM. 8:20 मुंबई. आप कहाँ पे हो मुंबई से? Mumbai से I'm from Dadar. Not very far from, I am from Worli Seaface. Oh, that's nice. अच्छा जी. So how can I help you? What is your question? Yeah, I recently lost my job, and I just wanted to know whether I would get a job soon. I mean, whether I should be in business or job. So you want to know if you should start your own business or if you should do your own job, right? That's right. So just to confirm, August 18, 1981, 8:20 p.m., right? Maharashtra, Mumbai. That's right. अच्छा. That's right. तो आपकी जो चार्ट है, that happens to be a Aquarius ascendant, and Saturn happens to be in the 8th house. Saturn sits very well with Jupiter, Venus in the 8th house. Venus, I would say Saturn in the 8th house तो लंबी लाइफ दे जाएगा इनको. But your question is, should you start? What kind of business do you want to start? Small scale food industry. Small scale food industry. घर देख, when you want to see, दो चीजें हैं यहाँ पर. One, is food industry the right industry for you? And two, what is the right time to start if you should start your own business, right? So let's see. Right. आपके ascendant में तो it's 26 degrees पे आपका जो ascendant है Saturn, that is sitting with Jupiter, that's okay. But जो आपका career है, that is run by Mars, and वो बैठा है 5th house में. When ascendant lord 5th पे चला जाता है ना, you'll do well. But that doesn't mean I'm encouraging you to start your business. Now looking at your chart, ascendant 26 degrees, Mars 27. अगर आपने time right दिया है, this is very good. My suggestion, start an independent business, don't do partnership with someone. Okay. Number But one. Husband? नहीं, husband is fine. We consider an astrology husband to be same as you, not as बाहर की दुनिया पे जाके जैसे किसी से partnership मत करना. You'll be fine. Number one. So you should start your business. Now look at your chart. We have Venus Rahu Dasha going on, right? And Venus and Rahu, Venus is actually your 9th lord, and जो राहु है वो बैठा है आपके 6th house में.
तो you might have to take some loan to start a business. इसके बाद जो Venus Jupiter की दशा है, they will give results of this, and I would say if you get a chance, there's a small window of opportunity. छोटी window है. Do it. You should start your business, and quite frankly, you can start it now. Go ahead. Okay. Saket, अगर food is not the industry, then which industry? Can you tell any hints? Thank you. वो कर सकते हैं हम, but उसको time जाता है. We'll have to see the 10th Lord कहाँ बैठा है from ascendant Sun and Moon, and that will take me some time. वो यहाँ होगा नहीं. अच्छा. We'll run out of time. Okay. So you can call. We can still guide you. What is the right thing, Sure. right? जी. Thank you, Kamna, for joining us. I will be giving out the numbers in just a little bit, but Rajesh has been on hold for a really long time. Hello, you're live on air, Rajesh. Maybe he gave up. Radio Zindagi, you're live on air. साकेत जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव है. Hello, Mr. Sanjeev. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1971. 8th June 1971. Okay. Yeah. छपरा बिहार इज द प्लेस. और टाइम क्या था? 5:30 शाम को. 5:30 शाम को. और Okay. आपका सवाल क्या है? सवाल मेरे को अपने करियर के बारे में, जॉब के बारे में पूछना और फैमिली के बारे में. क्या क्या पूछना है आपको जॉब के बारे में? स्टार्ट विद जॉब. जॉब स्टेबिलिटी, जॉब चेंज, हाउ विल बी माय करियर कैसा रहेगा? करियर कैसा रहेगा. आप क्या करते हो? व्हाट इज योर फील्ड ऑफ प्रोफेशन? आई एम इनटू द Sales. How has the last 1 year been for you? चैलेंजिंग. वो इसलिए मैंने पूछा. जो मून राहु की दशा है ना, वो that is going to cause you some problems. अब आपका मून जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई है. ओके. ये जो मून जुपिटर है, they are sitting in the same house. Believe me, from my personal experience, ये जो आपकी जो गज केसरी योग स्टार्ट हुआ है, वो ज्यादा रिजल्ट देगा नहीं आपको, अनफॉर्चुनेटली. Moon Saturn on the other hand, I know Moon and Saturn enemies है, but here is something. If you work hard, you work really 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 hard, वो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, if you work your dash off, you're going to do very well, because Moon Saturn is going to bring you some sort of stability and results starting June 31, 2024 till 26th June till March 2026 is a better time for you. I know बहुत astrologer argue करके कहेंगे no, but no, it is a better time for you. I would say अगर जॉब आप ढूंढ रहे हो, you want to change your job, you should switch to your job now. अब ढूंढो, because अगर आपने like एक साल में जॉब नहीं ढूंढा, it's going to get challenging for you. Okay. The problem I see in your chart is your house of gains. जैसे आप income है, you have house of gains. उसमें you have 2 negative planets sitting. That is and उसका जो lord है, it's a little weak. So that is regarding your job. Now regarding your family का क्या question है आपका? Family means how will be family, normal kids, family, Okay. typical. So Saturn is directly aspecting your 4th house, which is its own house. तो वो तो protect करेगा ही करेगा. I am not worried about that. As far as that goes, you're fine. हाँ, you may not like the answer, but you will have some stress from kids. आपका जो कारक है ना, उसका जुपिटर, वो retrograde है. थोड़ा सा लक चला जाता है, but you can work on it. It's not something big. Kids, eventually it just sees कि kids have their own identity, they have their own, ज़्यादा सुनते नहीं, उनको खुद का करना है, which is fine. No, I encourage that actually. That is what causes growth. जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अगर आपको ज़्यादा जानकारी है एंड इफ यू वांट टू सेट अप अ फुल टाइम एंड योर प्रॉपर कंसल्ट विद डॉक्टर साकेत भाटिया, देन द नंबर टू कॉल इज 408-639-5300. Number again is 408-639-5300.
5300. Email address is info@saketbhatia.com and the website is saketbhatia.com. We have a little bit time left, so if you are considering calling the studio numbers, number one last time is 510-770-1550. तो हम बात कर रहे थे साकेत कि अगर लग्नेश कहाँ बैठता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट्स. तो डिग्निटी के बारे में जरा बताइए. तो like I explained, dignity is जब planets खुश होते हैं they produce good results. When they are sad they produce bad results. अगर Saturn खुश है तो he'll give you stability in money, job, property. अगर Saturn दुखी है, खराब है, then he can cause havoc in your life. तो सैटर्न के पास तो सब कुछ है, फिर व्हाट अबाउट अदर प्लैनेट्स? व्हाट इज? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. राइट. अगर आपका वीनस अच्छा है then you will do, you could become famous, popular, like a model, actress. अगर वीनस ज्यादा स्ट्रांग हो गया आपकी चार्ट में, डिग्निटी बहुत ही अच्छी है, then he is going to, you could get into drugs, you could get into some other professions you shouldn't. अगर वीनस ज्यादा वीक हो then you will be dependent on people for everything in life. तो इसके बाद एक important factor है गति. It is also called speed. ये जो planets की speed क्या होती है? अच्छा. It is related directly to what we call transit. आपने सुना होगा. Many people say हम transits को बहुत importance देते हैं. The fact of the matter is transit should really be accountable for only 33% of a chart reading. अच्छा. Okay. Because the chart itself has to produce results. Transit is okay. ये है window, but 33%, no more. Yeah. हर एक planet की एक speed होती है. We consider sun to be a planet. तो sun will spend 1 month in a sign. तो जिस sign में बैठता है वहाँ कुछ होगा. Now let's assume somebody comes to me and says my right eye is weak. Immediately I see, okay, I have to look at the 12th house. I have to look at the sun. I have to see dignity of the sun. I have to see aspects on the sun. I also have to see Saturn जो उसका कारक है. These are important factors क्योंकि जब sun की दशा आएगी eyesight को problem होगा. Sun is also the कारक of bones. जब दशा आएगी bones को भी problem हो सकता है. So this is related to medical astrology. But दशा आएगी मतलब sun की speed? दशा जो होती है वो होता है जैसे सन अभी उड़ गया आपकी चार्ट में. See, you have planets. अभी for example, I am running Moon Saturn दशा. जी. तो मेरे चार्ट में Moon and Saturn both are awake right now. They will produce the results of the house they sit in. Okay. The houses they own and the houses they aspect. उठ जाना मतलब? अब उनका रिजल्ट देने का टाइम आ जाता है. Okay. अब ओके सैटर्न और मून का ही टाइम आएगा हमारी लाइफ में. तो एंड देन यू हैव टू देन नेक्स्ट स्टेप इज देखना कि ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट चल रहे हैं. जी. अब हमारा जुपिटर जो है दैट इज ऑन माय 6th हाउस, व्हिच मींस माय हेल्थ विल बी स्टेबल. इट इज आल्सो एस्पेक्टिंग माय 12th हाउस जिसमें वीनस राहु बैठा है. इट्स कंसीडर्ड हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ बिकमिंग पॉपुलर. नहीं, एंड देन सैटर्न जो है वो अभी 3rd हाउस में बैठा है व्हिच इज हाउस ऑफ करेज, हाउस ऑफ व्हाट आई वांट टू डू. क्योंकि हमने ये जो शो स्टार्ट किया वी कुड हैव स्टार्टेड दिस इयर्स अगो. हमने अब स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज सैटर्न केम इनटू दैट हाउस. तो आदमी जाके कहता है यार अब हमारा टाइम है, वी नीड टू डू समथिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जानिए कि आपके प्लैनेट्स कौन से घर में हैं और किस चीज को एस्पेक्ट कर रहे हैं. राइट नाउ सैटर्न इज एस्पेक्टिंग माय हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड गेस व्हाट, हमारा सैटर्न बहुत ही अच्छी डिग्निटी में. सो ही विल मेक मी मोर स्पिरिचुअल. मुझे ये कहना था कि आई एम वेरी लकी टू बी an astrologer and have knowledge of astrology. I'll tell you why. Because I know कि ये चार्ट्स पढ़ के 12,000 चार्ट पढ़ के पता चल गया है कि everybody's life is written. Seconds में हम बता सकते हैं आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे. Me as an astrologer, I've realized कि it is all karma, your past life. This is not your first life. You've been born again and again and again and again. And this is a tiring cycle. फिर कुछ होगा, then you'll be born again. You'll learn how to go to school, learn how to walk. फिर बड़े होगे, फिर mistakes करोगे, फिर emotions आते हैं. Being an astrologer is great because you can help guide people. जी. And the ultimate goal is you don't want to live again and again. You want to get out of this. That is what we want. Talking about helping people, we have Anu. Anu, you are live on air. Do you have a question for us? Yes, ma'am. You know what? This is a question from my wife. जी. And her date of birth is 17th June 1965. Birthplace is Ludhiana and 4:20 in the evening. And question is, पिछले 2 सालों से सेहत काफी ज्यादा कम होती जा रही है, लगता है पेन्स वगैरह, बॉडी पेन वगैरह काफी ज्यादा है. So the question is. टाइम क्या था प्लीज?
4:20 सर। शाम के। तो जून 17, 1965 थर्सडे। नो 1967। 1967 उनको बड़ा कर दिया हमने, सॉरी। अभी तो आपकी नहीं, वाइफ नहीं, यंग तो हो गई फिर 2 साल। अच्छी बात है, बस 2 साल बड़ा। नहीं, अभी यंग कर जल्दी- दिया, शी विल बी हैप्पी, तो आई टेक इट ना, बैक। जल्दी 65 साल की होंगी तो शुरू हो जाएगा, राइट? अब क्या क्वेश्चन है आपका? बस उन पिछले 2 सालों से ना उनकी मतलब पेन्स वगैरह, बॉडी पेन वगैरह काफी ज्यादा हो रही है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी? एक्चुअली इट्स एवरीवेयर। हाथ में रात को सो जाता है, सुन्न हो जाता है, और कार्पो टनल की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ शोल्डर में, इधर उधर सब कुछ। और उनको क्या कहते हैं, खाने के बाद मतलब जैसे रात को ना मतलब डाइजेस्ट नहीं होता खाना, ऐसे लगता है जैसे अभी निकल जाएगा, ऐसे रहता है। सो यू अभी सैटर्न की दशा चल रही है इनकी, और सैटर्न जो 5th हाउस का कारक है, नॉट कारक, आई एम सॉरी, लॉर्ड है, वो 6ठे घर में बैठ गया, बीमारी के घर में। दशा भी चल रही है सैटर्न जुपिटर की। हाँ जी। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब सैटर्न की दशा हुई थी, प्रॉब्ली 2019, बट अब जाके थोड़ी बढ़ गई 24 मार्च 2022 से। हाँ, दैट्स करेक्ट। सो यू जस्ट वेट, मर्क्यूरी की दशा स्टार्ट होती है, विच इज योर 6th लॉर्ड। आई थिंक sometime October 5th 2022 में everything should get a little better. I'm not saying it will get superbly better, but I'm looking कि आपकी planet की शत बाला भी 1 है, which is on the dot. मर्क्यूरी की दशा आती है, 9th लॉर्ड है, it should give you good results. Ascendant 22 पे है, मर्क्यूरी 25 पे है, and मर्क्यूरी जो है वो अपने ही घर में बैठा है। No, you'll be fine. You should be fine. You said October what? You said 2022, but क्या है? October 5th 2024. 2024. All right. Yeah. Thank you so much for joining us. एक चीज पूछनी थी, सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल पहले हम लोग अपार्टमेंट से दूसरी जगह रेंट किया था घर, और वो जो है वो साउथ फेसिंग है, तो डू यू थिंक कुछ फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता। मैंने No, it shouldn't matter at all. It shouldn't matter. South, north. घर आपका है ना? नहीं, ये रेंटल है प्रॉपर्टी, ब्रदर। फिर भी रहते तो आप उधर ही हो ना, घर ही हुआ समझो। जहाँ आप रहते हो वो घर होता है, whether it is rented or whether it is बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। just enjoy your house, be happy there. आप अपना mindset change करोगे, you'll start feeling better all of a sudden. ठीक है, ठीक है। Good luck जी। शुक्रिया आपका। जी। Thank you very much. Really appreciate for your help. Thank you. जी, thank you so much for not just you but everyone who called in to the show. पर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, and if you think that you would like to have a one-on-one session with Dr. Saket Bhatia, the office number is 408-639-5300. That's 408-639-5300. Email address is info@saketbhatia.com and the website is saketbhatia.com. तो हम बात करते थे ट्रांजिशन, और मुझे लगता है इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इज द रेट्रोग्रेड स्टफ दैट वी हियर अबाउट, इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन, प्लैनेटरी ट्रांजिशंस? Yes. जी। तो रेट्रोग्रेड जो गति होती है, इट्स मूविंग, राइट? अब रेट्रोग्रेड में क्या होता है, द प्लैनेट इज मूविंग फॉरवर्ड, बट हमारे हिसाब से इट इज मूविंग बैकवर्ड्स। सो जब 2 ट्रेन चल रही है, वन इज एट 10 miles and one is at 20, जी। आप 20 में बैठे हो, व्हेन यू पास द ट्रेन व्हिच इज एट 10, ऑल ऑफ अ सडन वो पीछे जाती है, इट सीम्स लाइक वो पीछे जा रही है। तो काफी लोग डर जाते हैं कि हमारा आज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑल कम्युनिकेशन विल स्टॉप, बिजनेस विल स्टॉप। नो, एक्चुअली जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, इट विल ओनली इम्पैक्ट यू इफ यू हैव दैट प्लैनेट रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर रेट्रोग्रेड जा रहा है, जी, राइट? तो इट विल ओनली इम्पैक्ट यू इफ यू हैव अ रेट्रोग्रेड जुपिटर। अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है, डोंट वरी। हमने एक्सपीरियंस में देखा, हमारी एसोसिएशन ने, आई डोंट इवन नो हाउ मेनी thousands and thousands, 100-200,000 charts में, it only impacts you if that planet is retrograde in your chart. Got it. जी। Okay, easy as that. And it will impact that house जहाँ बैठा है, for the good or bad depending on dignity. जी। तो हमारा जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड है हमारी चार्ट में, ओके, एंड एस्ट्रोलॉजी में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट। रेट्रोग्रेड सैटर्न लाइक मी इन द 9th हाउस विल रिजल्ट इन डिले ऑफ सर्टेन थिंग्स। जी। इसका ये मतलब नहीं मिलेगा, डिले मिलेगा आपको जरूर, लेकिन डिले होके मिलेगा। इन माय केस इट कुड बी फेम, स्पिरिचुअलिटी, बट है, मिलेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड डिग्निटी अच्छी है, मिल जाएगा। जी। अगर डिग्निटी खराब हो, he'll take it away. Got it.
ओके तो साकित बहुत कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट टाइम फॉर अस टू रैप आवर शो अप. तो जाते जाते आपके जो क्लोजिंग थॉट्स हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं एंड एवरीवन लव्स देम. तो आज क्या शेयर करेंगे हमारे लिसनर्स के साथ आप? तो जो क्लोजिंग थॉट्स है आप मुझे टाइट स्पॉट में डाल देती हैं हर टाइम. आई टोल्ड यू दैट बिफोर. आई यूजुअली जस्ट से द क्लोजिंग थॉट्स फ्रॉम माय माइंड. तो बैठे बैठे 5 मिनट में हमने क्लोजिंग थॉट्स लिख लिया आज के शो के लिए. एंड टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हैप्पीनेस. ओके, I want to tell everybody, be happy, learn to be happy. But question is, ये happiness होता क्या है? हम happy कैसे रहें? तो happy living and happiness is actually an art. It is finding happiness and joy in every moment of your life, in everything you do. It is not based on external factors. Rather, it is cultivated from within. आपके अंदर से आना चाहिए खुशी. To live happy, you have to appreciate small things in life. You have to relish the company of people you're with, whether it is your son, daughter, parents, brother, sister. You must appreciate the beauty of the moment you're in, because ये time वापस नहीं आएगा. Happiness involves setting meaningful, realistic goals, nurturing positive relationship with people, taking care of your physical and mental well-being. Happiness is about embracing gratitude, resilience, and having a positive outlook in life no matter what the challenges are for you. Happiness is a journey of self-discovery and personal growth, where the pursuit of happiness is a way of life rather than a destination. Ultimately, happy living is about fulfillment and radiating that happiness with everybody who's around you. Learn to be happy and spread happiness. That is critical and most important thing in life. ब्यूटिफुली सेड. एंड लाइक यू सेड, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने बहुत अच्छे से क्लोज किया विथ योर वंडरफुल वर्ड्स. और मैंने भी नोटिस किया, मैं कुछ अगर उल्टा बोलती हूँ, यू करेक्ट मी वेरी वेरी प्रिसाइसली. सो थैंक यू सो मच साकित फॉर बीइंग हियर ऑन रेडियो जिंदगी. पर यूजुअल एवरी वीक वी एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई एम होपिंग हमारे लिसनर्स को भी ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगती होगी. दिस वॉज द रैप अप ऑफ द प्रैग्मेटिक एस्ट्रोलॉजी शो विद डॉक्टर साकेत भाटिया. यू नो साकेत भाटिया जी इज अ PhD in Vedic astrology, board member in International Association of Vedic Astrology and Numerology. If you want more information on him, you can go to saketbhatia.com. Number for his office is 408-639-5300, and you can email him at info@saketbhatia.com. Web address is saketbhatia.com. With that, signing off from the show. Thank you so much, Saket, for being here and being with us on the show. Thank you so much. That was it, and I will be on air for the next couple of hours, so stay tuned to Radio Zindagi. We shall be right back. Ji aja. You are listening to Radio Zindagi, KZDG 1550 AM, San Francisco.